Welcome students. In today's session we are taking the topic abnormal molecular mass, the want of. See, we have learnt total 4 colligative properties. Number 1, vapor pressure, boiling point, freezing point and osmotic pressure. Okay, by these 4 methods we can determine the molecular mass of a solute. Suppose a compound is prepared, we want to find out the molecular formula and molecular mass of that substance. तो molecular formula हम percentage से हम find out कर सकते हैं, percentage कार्बन हाइड्रोजन या जो भी दिया हो. एंड molecular mass अगर हमें find out करना है तो molecular mass find out करने के लिए ये generally 4 methods हम use करते हैं. So again, to determine the molecular mass of unknown substance, these 4 methods can be used. Now see how can we use. अब जो terms हमें पता है वो हम write करते जाएंगे. तो चलो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला और देखो सबके इक्वल्स में और फाइनली ये फॉर्मूला मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं. ओके, ये 2 फॉर्मूला. तो चलो ध्यान से देखना कि जो टर्म्स हमें पता है वो मैं राइट करते जाऊंगा. ओके, चलो ध्यान से देखना. तो फर्स्ट मेथड इज वेपर प्रेशर मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन. सपोज वाटर इज टेकन. So water is taken, then W1 is known, and water, then its molecular mass is also known. Easy? And then its vapor pressure is measured by the instrument manometer. That means P10, vapor pressure of pure solvent is known for us. Then a solute is dissolved into it having particular mass. चलो जो पाउडर हमने फाइंड आउट किया है, पहले तो वो देख लिया कि कौन से सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है. सपोज वाटर में वो सॉल्यूबल है, तो फिर उसका पर्टिकुलर मास हमने लिया वो पाउडर का और फिर उसको डिसॉल्व किया पर्टिकुलर मास के वाटर में. तो W2 is known for us. Now we know pure solvent and the solution. So if we compare the vapor pressure, again if we compare the vapor pressure, so we know that the vapor pressure of solution is always less than that of pure solvent. So that if we take P10, then solute is dissolved, unknown substance is dissolved, then P10 will be less, but it can be measured. So now only one term is remained and that term is M2. Okay, that term is M2. So M2 can be calculated. Easy? तो देखो जो मैंने राइट की अब एक ही टर्म बची, कौन सी? That is M2. चलो सेकेंड मेथड, बॉइलिंग पॉइंट मेथड. Water is taken having particular mass, W1 is known, Kb is constant. पता है ना Kb, एक मोलर सोल्यूशन का जो भी मोलिकुलर मास जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज Kb. ओके, चलो अब प्योर वाटर लिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने पहले मेजर कर दिया. दैट मीन्स T0b इज नोन फॉर अस एंड वी नो दैट इफ वी डिसॉल्व पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 इज नोन, देन boiling point will increase, but it can be measured. P minus T0b, that is our delta TB. So delta TB is also known. So now only one term is remained and that is our M2. So this M2 can be calculated. You see, this M2 can be calculated. Here also M2. M2 means molecular mass of solute. Next, similarly freezing point. चलो सिर्फ मैं M2 पे सर्कल बना रहा हूँ. Same चीज, Kf is constant, particular mass of solvent is taken, then its freezing point can be measured, that is T0f, and solute is dissolved having particular mass, then freezing point will decrease, that is Tf. So T0f minus Tf, that will be delta Tf. So only one term is remained, that is M2. Okay,
एंड नाउ वी आर कंसिडरिंग द लास्ट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो फिर से मैं यहां पे जो जब ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने एक्सप्लेन किया ना था ना, तो चलो वही फिगर मैं यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। चलो तो वो ध्यान से देखो अभी। सी हियर वी आर कंसिडरिंग 1 beaker, at middle SPM, semi permeable membrane, cellophane, parchment paper, urinary bladder of pig and frog. Okay, and base semi permeable membrane is K4FeCN6. At initial level we have water at both of the sides. So here is pure water, okay, and another side also pure water is taken. So here is pure water, here also pure water, but so at that time no osmosis will occur. चलो यहाँ पे है SPM, चलो ये तो पता है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो। नाउ हियर वी आर डिसॉल्विंग 10 molecules of urea. Okay, so now here it will be solution. So we know that if pure water and solution both are separated by SPM, at that time spontaneous flow of solvent molecule will be obtained from pure solvent to solution. And if we keep here a piston, then we know that at solution side if we apply the pressure then we can stop the osmosis. Okay, तो अब ध्यान से देखना। अगेन जो जो चीजें हमें पता है चलो मैं राइट करते जाऊंगा। ओनली वन टर्म विल बी रिमेन एट दैट टाइम। चलो अगेन, पर्टिकुलर वॉल्यूम इज टेकन ऑफ सॉल्यूशन, temperature is constant because volume is concerned, then it is temperature dependent, that's why we have to apply the temperature term. R is a gas constant. Okay, in a particular volume of solvent, particular mass of solute is dissolved. So at that time here solution will be prepared, then spontaneous flow of the solvent molecule will be obtained from pure solvent to solution. And to stop the osmosis we have to apply the pressure, that is pi. So pi will be known. Okay, so only one term is made again, that is molecular mass of solute. So that can be measured, that can be calculated by the osmotic pressure method, and this one is the best method. चलो ये तो पता ही होगा। तो ओवरऑल आपको चारों मेथड में इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि ये चारों मेथड से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो ये मैंने अभी चारों फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिए जिससे आपका फंडामेंटल अच्छी तरह से क्लियर हो कि व्हाई वांटर टर्म इज एडेड। चलो अब ये मुझे समझाना है, तो उसके लिए अब ध्यान से देखो। इफ वी टेक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है पता है? जिसके आयंस नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से हैं? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। तो ये सब सब्सटेंसेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब if one molecule is dissolved, at that time we are getting one solute particle. Solute particle मतलब जितने molecules उतने ही solute particles उसमें होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे यूरिया या तो फिर ग्लूकोज या तो फिर सुक्रोज डिसॉल्व किया है, सो एट दैट टाइम चलो मैंने कितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए थे? मैंने बताया ना 10 मॉलिक्यूल्स मैंने डिसॉल्व किए थे। तो उस हिसाब से आपको
ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. एट दैट टाइम पाई कैन बी ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट वैल्यू, और उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं. बट नाउ instead of urea, if I dissolve NaCl, so we know that NaCl is electrolyte substance. It gives which ions? It gives Na plus and Cl minus. So here we can say that if 10 molecules of urea are dissolved, number of solute particles are 10. But if we dissolve NaCl, then at that time instead of 10 molecules, here we are getting 20 number of ions. That means 20 solute particles. हमने कितने dissolve किए थे गिन के? 10 molecules. लेकिन अंदर due to ionization, due to dissociation, we are getting the double solute particles. So at that time the obtained pi will be doubled. ओके तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है पाई इक्वल्स W2RT बाय M2V, उसमें आपको जो पाई मिलेगा वो कितना मिलेगा? डबल मिलेगा जो है उससे. क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा. क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा? बिकॉज ड्यू टू डिसोसिएशन वी आर गेटिंग द डबल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. क्यों? एक NaCl में से 2 आपको आयंस मिल रहे हैं ना, इसलिए. तो अगर हमें परफेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा करेक्शन में? चलो डिवाइडेड बाय 2 पहले से कर देना पड़ेगा. जो भी पाई मिलेगा वो डबल मिला इसलिए. चलो अब NaCl छोड़ो और एक कंपाउंड लेते हैं, दैट इज K3PO4, पोटेशियम फॉस्फेट. नाउ टेल मी विच आयंस विल बी फॉर्म्ड? आंसर इज K plus and PO4 3 minus. अगेन K plus एंड PO4 3 माइनस. अब कितने K प्लस मिलेंगे आपको? 3. और PO4 कितने? वो तो 1. ओके तो टोटल अब यहां पे आपको कितने आयंस मिले? फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल 3 एंड 1 4. तो एक मॉलिक्यूल में से आपको टोटल 4 सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे. तो आपने तो 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिसॉल्व किए थे, तो आपको इंस्टेड ऑफ 10 कितने मिले आपको? 40 मिले. कितने टाइम्स ज़्यादा मिले? 4 टाइम्स ज़्यादा मिले. तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कितने टाइम्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स ज़्यादा. तो अगर मुझे करेक्शन करना है तो 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 4. तो मतलब यहाँ पे करेक्शन में हम डिवाइडेशन में हम क्या लिखेंगे? तो डिवाइडेशन में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है वही हम लिख रहे हैं. देखो 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स देन पाई बाई 2, 4 सॉल्यूट पार्टिकल पाई बाई 4. पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पता है ना वो तो. अगर 5 आयंस मिलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला क्या है उसका? Al2SO4 थ्राइस. तो उसमें से 5 आपको सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे. तो 5 सॉलिड पार्टिकल्स मिले तो उसका मतलब क्या हुआ? करेक्शन में क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 5. और ये जो डिनोमिनेटर है वो अगर ऊपर जाएगा तो वो W2 के पास हम लिखेंगे वही टर्म. दैट्स वाई वॉन टॉप साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने एक टर्म हर एक में ऐड करवा दी. और वो टर्म कौन सी थी? I2. I2 क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो वो बढ़ गए ना, इंक्रीज हो गए ना. तो वो कहाँ आएंगे? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहाँ पे. तो देखो N2 इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स व्हाई वी विल कीप हियर. अब N2 क्या है? N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. दैट्स व्हाई W2 अपॉन M2. तो हम W2 के बाजू में लिखेंगे. चलो इतना पता चल गया. W2 के बाजू में, W2 के बाजू में यहाँ पे भी आएगा, W2 के बाजू में यहाँ पे भी आएगा, W2 के बाजू में यहाँ पे आएगा, N2 के पास आएगा अभी मैंने बताया, N2 के पास आएगा अभी मैंने बताया, N2 के पास आएगा मैंने बताया. चलो जो शॉर्टकट फॉर्मूला है मोलालिटी तो वहीं पे जो देखो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आएगा. तो जो भी ब्लू कलर से मैंने लिखा वो क्या है? वो करेक्शन है. क्योंकि अगर आयोनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन हो रहा है तो I विल बी ग्रेटर देन 1. डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है? कि उसमें से आयंस फॉर्म होंगे जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे. ओके तो दिस वन इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द टर्म I that is added into the vapor pressure formula, boiling point formula, freezing point formula and the osmotic formula.
ओके तो चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके जो क्वेश्चन है वो मल्टीपर्पस है। फॉर 0.02 मोलल Al2SO4 thrice, number 1 boiling point of solution equals dash, and for that Kb is given to you 0.512 Kelvin kilogram per mole. Second number, freezing point of solution, and for that Kf is required, that is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Number 3 is vapor pressure of solution, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, P10, suppose it is 50 mm, and concentration is given to you molality. अब देखो Al2SO4 thrice is an electrolyte substance. Okay, we know that. So boiling point का फॉर्मूला, चलो मोलालिटी डायरेक्ट दे दी है तो बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है डेल्टा TB, that will be Kb into m into I, and what is the value of I? तो I equals क्या होगा, Al2SO4 thrice, मतलब टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 Al और 3 SO4, so I will be 5. चलो इतना तो क्लियर। Kb is given to you 0.512, molality is given to you 0.02, and I will be 5. अभी तक आपको जो भी सोल्यूशन देते तो आप डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर देते थे। यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा आई, और वो कौन सी है, I. ओके तो अब देखो आंसर तो इजीली यहां पे हो सकता है, 0.02 इंटू 5 कितना होगा, 0.1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0.0512, ये आया अपना TB, डेल्टा TB। सो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी 100, ऐड कर दो उतना, मतलब 100.052 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 373 ऐड कर दो इसमें, दैट्स इट। ओके दिस वन इज अवर नंबर 1। नंबर 2, freezing point of solution, same formula, delta TF equals Kf into molality into I. So it is 1.86 multiplied by 0.02 multiplied by 5. So here is 0.86 degree Celsius. Okay, so that TF will be, जो होगा उसका नेगेटिव साइन, -0.186 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में है तो फिर 273 में से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो तो 272.81 and 4 केल्विन। तो ये हुआ अपना सेकंड। चलो नई टर्म कौन सी आई, ओनली द आई टर्म। ओके दैट्स इट। एंड नाउ नंबर 3, चलो अब ये ध्यान से देखो, इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज P1. So formula will be P10 minus P1 upon P10 equals I into N2, या तो फिर डायरेक्ट X2 into I, यही होगा। तो साइड में आप X2 पहले कैलकुलेट हो। चलो X2 का फॉर्मूला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.02 मोलल आपको दिया है Al2SO4 thrice, राइट। तो इसका मतलब होगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains 0.02 moles of Al2SO4 thrice. ओके तो इसका मतलब होगा कि ये है अपना N2। ओके इससे हम फाइंड आउट करेंगे N1, और N1 क्या होगा, 1000 by 18, and that is 55.555, that is 56. ओके चलो तो डायरेक्टली आप ये भी ले सकते हो X2 कैलकुलेट करके,
या तो फिर x2 का पूरा फॉर्मूला लिख के भी आप कर सकते हो। ओके तो चलो x2 यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। 0.02 डिवाइडेड बाय 55.8 मैंने सम किया इसका और इसका, तो आंसर आपको मिलेगा 0.02 डिवाइड बाय 55.58 दैट इज 3.659 है ना। हाँ तो 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जस्ट पुट द वैल्यू और एक टर्म चलो एक्स्ट्रा ध्यान से देखो, P10 अपॉन P10 दैट इज 1 माइनस P10 अपॉन P1 अपॉन P10। I कितना है 5 और x2 हमने कैलकुलेट किया 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके अब 3.6 इंटू 5 तो हाफ कर दो तो 1.8 एंड 10 मल्टीप्लाई करो तो 18। सो 1.8 इंटू 10⁻³ या तो फिर 0.0018 देख लो दैट इज 1.8 इंटू 10⁻³ ओके और 1 माइनस 0.18 इक्वल्स P1 अपॉन P0। और अब P10 को सब्जेक्ट बनाओ, सॉरी P1 को सब्जेक्ट बनाओ तो होगा 1 माइनस 0.0018 दैट इज 0.9982। ओके यहां पे हम लिखेंगे P1। अब ये नेगेटिव साइन तो 0.9982 मल्टीप्लाइड बाय P10 तो P10 क्या है 50 दैट इज गिवन इनटू द क्वेश्चन देख लो। ओके सो जस्ट मल्टीप्लाई 0.9982 टू 50। $49.91 so 49.91 mm इज द। तो चलो तीनों आंसर लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, चलो 373.05। तो अगर एमसीक्यू में पूछा है तो फिर आपको 4 ऑप्शन से देखने हैं। ओके या तो फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे केल्विन में फाइंड आउट करो या तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करो। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 272.814 केल्विन। ओके और वेपर प्रेशर कितना आया 49.91 mm। ओके तो ये है फंडामेंटल। सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आई और वो थी कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉरी वांट ऑफ फैक्टर। तो वो हमने यहाँ पे सब जगह देखो 5 मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। ओके तो इस मेथड से आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स ये है 1 2 3 4 ये चारों न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में करने हैं। ओके फर्स्ट में परसेंटेज W/W दिया है, सेकंड में मास एंड दोनों दे दिए, थर्ड में मोलालिटी, फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डिफरेंट न्यूमेरिकल दिया है तो वो आपको करना है। ओके अब और एक चीज़ ध्यान से देखो, प्रीवियस सेशन में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था और एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आर सेम। ओके या तो फिर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सेम, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात आती है तो मोलर कंसंट्रेशन इज सेम। ओके इतना तो क्लियर। तो चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं और बाकी सब में फिर सिंबल
से ही लिखूंगा, जिससे आपको पता तो चल जाएगा कि ये क्या है। तो ध्यान से देखना। सपोज आई से 0.08 मोलर FeCl3 solution is isotonic with dash molar K2SO4। ओके, अब ये ध्यान से देखना कि ये क्या है, आपको ये ब्लैंक फिलअप करनी है। तो अब चलो, यही चीज में थोड़ी डिफरेंट वे से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट वे से। सो 0.08 मोलर FeCl3, इट इज आइसोटोनिक विथ, देखो इसका सिंबल, अब जो भी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लिखूंगा इसी फॉर्मेट में लिखूंगा, डैश मोलर K2SO4, राइट। चलो, FeCl3 के सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 Fe एंड 3 Cl, तो टोटल होंगे 4, एंड दैट 4 विल बी टोटल multiplied to the molar concentration, so it will be 8 4s are 32, so 0.32 molar. This is the molar concentration of solute particles, and we know that isotonic means here also the molar concentration of solute particles will be same 0.32 molar, but K2SO4 has how many ions, 3, तो कुछ मल्टीप्लाई करने से आप 0.32 मिलेगा, कुछ को जो भी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन आएगा उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर वी आर गेटिंग 0.32, तो फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.32/3, तो कितना होगा 0.1, देन 0, देन 6666, ओके, तो 10666, तो 107 we can write. So if we take 0.107, then it will be isotonic with 0.08 molar FeCl3. ओके, तो ओवरऑल चलो मेथड क्या हुई, इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स उसको मल्टीप्लाई करो 0.08 से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 0.32, वही कंसंट्रेशन यहाँ पे भी होगा, सो दैट वी कैन से दैट इट इज आइसोटोनिक। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आए मोलर कंसंट्रेशन, उसको उसके सॉलिड पार्टिकल से मल्टीप्लाई करो, देन वी आर गेट सेम वे दैट वैल्यू। अब देखो 0.107 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको भी यही आएगा। इजी, नेक्स्ट वन, चलो अब सेकेंड वन ध्यान से देखो, 0.05 मोलर HNO3, which is isotonic with dash molar K4FeCN6। इस कंपाउंड का नाम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ना, दैट इज कंसिडर्ड अ होल आयन, दैट इज 1 आयन, और K4 कितने, 4, तो टोटल कितने होंगे, पोटाशियम फेरोसाइनाइड मतलब टोटल कितने होंगे, 5, तो यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स 5 आए, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन, यहाँ पे HNO3। चलो HNO3 के सॉलिड पार्टिकल्स कितने, S एंड NO3 1 माइनस कितने होंगे, 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, तो ये हुआ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो यहाँ पे भी 0.1, और इसको डिवाइड करो तो इसको 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, 2, ओके। सो 0.05 molar HNO3 is isotonic 0.02 K4FeCN। चलो ब्रैकेट वाला याद रखना है कि ब्रैकेट इज कंसिडर्ड एज होल आयन। चलो और एक देख लो, 0.14 मोलर NaCl, which is isotonic with dash molar
ध्यान से देखसन्स Fe4 FeCN6 thrice 0.14 molar NaCl is isotonic with Fe4 FeCN6 thrice. चलो ये भी एक बार करवा दूं. So first of all, NaCl contains 2 ions multiplied here. We are getting 0.28 molar. Here also we will get 28 molar. Now, how many solid particles are there from one molecule? So Fe4 matlab 4 ions and bracket thrice means total 7 ions. Okay, and that 7 is divided to 0.28. कितना होगा 0.04. Okay, so that's the answer. ओके तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. 10% W/V NaOH सोल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि मोलारिटी पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको याद है, परसेंटेज W/V इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो परसेंटेज W/V इज 10, it is multiplied by 10 by molecular mass is NaOH का molecular mass is 40. That's why it is 10 by 4, that is 2.5 molar. अब NaOH के solid particles है 2, so it multiplied by 2, so the total molar concentration is 2.5 into 2, that is 5 molar. And isotonic means same molar concentration, तो यहाँ पे भी 5 molar. KOH के भी solid particles 2 हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय 2 लेंगे, जिससे KOH की मोलारिटी ये आपको मिलेगी 2.5 मोलर, सेम मोलारिटी, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर सेम, K प्लस OH माइनस, हियर ऑल्सो Na प्लस OH माइनस, दैट्स वाई. अब मोलारिटी आई तो परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या था याद करो, और मोलारिटी का रिलेशन, तो मोलारिटी into molar mass by 10. ओके, जिसमें मोलारिटी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास KOH का 56 डिवाइड बाय 10. तो याद हो तो 2.5 4s 10 and 14 4s 56. दैट्स वाई 14% W/V KOH. तो ये हुआ अपना एक्सट्रीम लेवल. तो जब भी आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको भेजे तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसी के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर अगर वॉन ऑफ फैक्टर से कैसे अफेक्ट होगा, तो ये आज हमने पढ़ा. ओके, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें याद ये रखना है कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो उस टाइम पे I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जब एसोसिएशन होगा, so at that time I will be less than 1. ओके, तो वो कैसे होगा और क्या फंडामेंटल उसमें यूज होता है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ओके देन, गुड बाय.